ओके, कहाँ से, नाम से? ओके, आई एम अनिरुद्ध जवाहर एंड दिस इज सोयब निसर्ग सोसाइटी। तो आज हम हमारे जो यहाँ पर जनरल इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने ये यहाँ पर 2012 जनवरी में फ्लैट बुक किया था, अभी 2016 ऑलरेडी हो गया है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़, वी आर स्टिल सफरिंग। When I say we, it's like 600 families suffering. It's not me who is alone suffering, but there are 600 families and their kids. They are suffering. And the recent issue about this housekeeping. तो हमारे जो हाउसकीपिंग वाला था, जो बिल्डर ने अपॉइंट किया था, इज चार्जिंग डबल ऑफ द मार्केट रेट एंड प्रोवाइडिंग द सर्विस दैट इज नॉट अप टू द मार्क. सो इट्स like half the services and double the price. And then when our committee they decided to change it, this not allowing to the new housekeeping guys to come and work here. Even they come down to the society premises, threaten the residents, and the new housekeeping company that we appointed for, they went their home, their labors were threatened, and they went up to the house of one manager and beated him very badly. So he just say कि हम नहीं आ सकते बिकॉज वो लोग मना कर रहे हैं और हमारा भी उसमें कुछ नहीं है. व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग विद द बिल्डर की सर आपने स्टार्टिंग में ये हाउसकीपिंग का रखा था, इसको चेंज करना है, तो बोले तो देन द बिल्डर आस्क्ड अस कि नहीं, दैट इज़ योर इश्यूज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ, आई हैव नथिंग टू विद इट. एंड ही कम्प्लीटली शेड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय सेइंग दिस स्टेटमेंट. I'm not responsible. I am not responsible. He is not only threatening the new housekeeping guy, he is also threatening the residents. He is trying to find like who are the people who are actually registering, and then he will see them. Like who is opposing? Housekeeping agency is threatening the residents. Yes, Residents like as well. they are just looking for the person or people who are just saying कि we cannot go ahead with the current housekeeping, we should go for the new housekeeping. He tried to segregate the residents and find out the particular names, 2 or 3 guys. कि किसने किया था, so that he can actually catch them and threaten them. ताकि उनका काम चलता रहे. जो ये process है appointing of the new housekeeping agency was a transparent one. We called the quotation from all over the market. Even he himself submitted the quotation. Okay. But he submitted the quotation of the same rate. Okay. 2 lakh. And whereas we are getting a better company, a professional one, in 1.25 lakhs. Okay. And providing the same services. But he is not just submitting the quotation. He wants us that you continue with this quotation with the same quality of services, the pathetic services basically. And he is not allowing anyone else to do. And now he is saying that कि मैं किसी और को यहाँ काम नहीं करने दूंगा, ये मेरा सोसाइटी है और इनको मेरे ही पास आना पड़ेगा. And then builder is just washing his hands. Builder is saying कि no, I can. The housekeeping company was appointed by builder originally. Appointed by the builder. Builder originally. Okay. And now builder is saying that I have no role to play in this. And then also there were some talks about it कि क्योंकि 16 तारीख को हमारे यहाँ पर जनरल मीटिंग है बिल्डर के साथ में. तो बिल्डर ने हाउसकीपिंग वालों को बोला है कि तुम 16 तारीख तक रुक जाओ, मार पिटाई मत करो ना रेजिडेंट्स को ना नए हाउसकीपिंग वालों को, क्योंकि 16 तारीख तक मेरा एजीएम है. 16 तारीख के बाद तुम्हें जो करना है वो करो. बिकॉज 16 तारीख को हैंड ओवर दे देंगे सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. नॉट हैंड ओवर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन That is the first AGM कंप्लीट हो meeting. जाएगी. ये एजीएम होगी. ये एजीएम दैट इज फॉर. एंड उसने हाउसकीपिंग वाले को बोल रखा है तब तक कोई प्रॉब्लम मत करो, बिकॉज 16 तारीख तक मैं हूँ वहाँ पे. 16 तारीख के बाद तुम्हें जो करना है शो करो, हमारा कोई हाथ नहीं रहेगा उसमें. Okay. इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि बिल्डर अगर चाहे तो उसको रोक सकता है, लेकिन बिल्डर उसको अपॉइंट किया था और वो ये जो कर रहा है बिल्डर उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है. क्योंकि अगर वो बिल्डर के कहने पर 16 तारीख तक रुक सकता है तो आगे भी रुक सकता है, या वो ये सब नहीं कर सकता है. Very true. बट बिल्डर उस पर कोई नहीं ले रहा है बिकॉज दे हैव सम नेक्सस बिटवीन देम. Builder is taking advantage of this situation. अब और टू नेम सम अदर इश्यूज अगर हमने आपको नहीं, बोलूं, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा सुना था कि वाघोली में टैंकर माफिया है, तो वैसा भी है, हाउसकीपिंग माफिया भी है. हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये नेक्सस है एक तरह से. अगर यहाँ पर काम करेंगे तो सिर्फ हम करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा. हम किसी को करने नहीं देंगे. हम करेंगे तो हम हमारी मर्जी से हमारे प्राइसेस पे करेंगे, हमारे प्राइसेस पे करेंगे. या तो आप मार्केट प्राइस लगाओ और सर्विसेज दो, सो दैट वी विल नॉट हैव इशू, यू आल्सो अर्न, वी आल्सो हैप्पी. बट नहीं, हम तुमसे इतना पैसा लेंगे और इतना गंदा ऐसी और काम इतने ही क्वालिटी का देंगे. उसमें कोई वो नहीं.
इनफैक्ट जब उनके कई लोग नहीं भी आते हैं तो वो उनका सबका अटेंडेंस लगा देते हैं, कभी और पैसा उठा लेते हैं। 14-20 वो 12 अपॉइंटेड है, हाँ। उसमें 4 लोग नहीं आते हैं, वो शीट जो है वो पूरा प्रेजेंट लगा के जाते हैं कि नहीं आए तो नहीं आए। ग्राउंड पे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 20 लोगों का वो पैसा चार्ज कर। तो आर यू श्योर कि ये खाली एक वेंडर और एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है? ऐसा काफी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे ही प्रोजेक्ट्स के अंदर है इशू। एटलीस्ट वाघोली के जो और प्रोजेक्ट्स हैं दूसरा ये वहाँ एग्जांपल पे इश्यूज हैं, लेकिन कई जगह इशू है। IBI स्टेट में भी वोल्टे पाटिल खुद की एजेंसी है क्लीनिंग की, IBI स्टेट में यही इशू है। इशू यही है, IBI स्टेट खुद की कंपनी है जिसपे वो हाउसकीपिंग करवाती है, वहाँ पे वो इशू। तो दिस इज नॉट अबाउट द सोसाइटी, इट्स अबाउट द एरिया। Even we are not the one who is facing this issue. Other societies nearby, they are facing the same issues. ये इशू सारी सोसाइटीज़ में है। मुझे लगता है इशू ये है कि we residents or the customers, the actual customers, we are not either aware of that much or we are not willing to go that far. हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, अगर कोई और आवाज़ नहीं उठा रहा है तो हम भी क्यों उठाए, और अगर कोई और उठा रहा है तो ठीक है, फिर हम क्यों उठाए, वो तो उठा ही रहा है, वो कर लेगा। सो दिस इज द रॉन्ग परसेप्शन इन द कंज्यूमर लॉबी, क्योंकि हम सब लोग जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हम इसको अचीव नहीं कर सकते। आज 2 या 4 लोग अगर आवाज उठाएंगे तो बिल्डर उनको दबा सकता है, कोई जो लोकल गुंड्स है वो उनको दबा सकते हैं, खरीद सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। लेकिन जब आप सारी सोसाइटीज वाले यूनाइटेड हो जाएंगे तो कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये एक पहली चीज है जो मुझे लगता है कि सारे कंज्यूमर को एक पेज पे आना होगा, उन्हें यूनाइटेड होना होगा। इनफैक्ट बिल्डर्स लोग भी हमसे ज्यादा यूनाइटेड है। जबकि यहाँ कंज्यूमर की मतलब आप पूरे वाघोली में रहने वाले कंज्यूमर की बात कर रहे हो, डिफरेंट सोसाइटीज हैं, सब सोसाइटीज जो है, if they are facing the same issue, if you guys are facing the same issue or the water, if you are facing the issue on the HK guys, housekeeping guys, you are facing the issue for security guys, they have the nexus. If we cannot come together on the same page, they will continue their business and today they are threatening a one housekeeping agency who is coming from outside the Wagholi. Later on they will come to your home, knock your door and will threaten you, don't say anything, we are doing the business here. If we cannot come together, if we cannot come on the same platform, this thing will never end, and this thing will pass to our next generation. Since we are staying there, later our kids or children will be staying there and they will be seeing the same issue and facing the same issue. So we should come together to get it done.